Good morning, student. Today we will start a new chapter, chapter 4, Naturally Yours. Naturally yours means student, naturally यानी प्राकृतिक, yours यानी आपका, यानी स्वाभाविक रूप से जो आपकी चीज़ें हैं, we call it naturally yours. Now student, we are on page number 45. Here, natural resources. So student, resources means assets, funds and expedient. 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 Resources means संसाधन. Clear? Resources means संसाधन. Expedient. Now 4.1 PAP is here. Student, in this PAP, what we are doing? Look at the picture and fill in the blanks. Now first we all see the picture, natural or man-made. Okay. Now after that you will give the answer. Nature provides. Nature provides. Fill in the blanks, blank and dash blank. Nature provides how many things? Nature provides us sun, wind, water, soil, animal, trees. Clear? So write it here. Nature provides us so many things: sun, sunlight, heat, water, soil, animal and trees also. These things provide by nature to us. Second question is, fill the blanks here also. Dash, dash and dash are made by humans. Dash, dash and dash are made by humans. So, windmill, house, kite, clothes, so many things made by human. So give the answer according to your. Okay student, don't discuss to other, give the answer here, write the answer here yourself. Now student, we are on page number 45. Then the sun, wind, water, animals and plants in the picture are gifts from nature. ये चीज़ें हमें प्रकृति ने दी हैं. प्रकृति इज व्हाट? नेचर. सन है, विंड है, वाटर है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं. ये सब चीज़ें हमें प्रकृति ने दी हैं. लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट the air we breathe, the food we eat, the water we drink, the sun which provide warmth and light. Life is not possible. Life बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. किनके बिना? एयर के बिना, क्योंकि एयर से हम ब्रीथ करते हैं, फूड हम ईट करते हैं, वाटर हम ड्रिंक करते हैं, सन हमें प्रोवाइड करता है वार्म एंड लाइट, यानी हमें गर्मी देता है, हमें लाइट देता है, रोशनी देता है. ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं अर्थ पर. Now student, so life is not possible on earth without following things. Our natural resources is something that is found in nature and can be used by people. Sunlight, wind, water and animals are examples of natural resources. Now प्रकृति के जो संसाधन हैं, ये संसाधन हैं क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें गिफ्टेड है हमें प्रकृति के द्वारा. ये चीज़ें हमें गिफ्ट दिया है प्रकृति ने. दे हेल्प मेक आवर नीड्स एंड वांट. ये हमारी मदद करते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में, जो हम चाहते हैं उन चीज़ों को पूरा करने में. नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर एंड वाटर आर इसेंशियल. इसेंशियल मीन्स नेसेसरी और कंपल्सरी. बेटा इसेंशियल.
essential, it means compulsory and necessary for life. ये जो चीज़ें हैं, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं लाइक वाटर एंड एयर, ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है. नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वुड फ्रॉम ट्रीज आर यूज टू मेक द थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ. नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन जैसे वुड फ्रॉम ट्रीज, लकड़ियाँ जो हमें पेड़ों से मिलती हैं, आर यूज टू मेक द थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ. इनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं, रोज़ हमारे लिए ज़रूरी होती हैं. जैसे फर्नीचर में जैसे बेड, जैसे टेबल, लाइक चेयर, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत नेसेसरी हैं हमारे लिए. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गिफ्टेड हैं बाय नेचर, यानी प्रकृति ने ये आपको गिफ्ट दिया है कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी. सो बेटा, एसेंशियल मीन्स नेसेसरी एंड कंपल्सरी. क्लियर है? ओके. आफ्टर दैट वी आर ऑन पेज नंबर 46. Can you list a few uses of water? Can you list few uses of water in your everyday life? Question is here. Can you list a few uses of water? कुछ uses बताने हैं water के जो आपके daily life में काम आते हैं. Clear? So write it here. Drinking, cooking, bathing, washing clothes and dishes, watering plants and flushing toilets, and etc etc. So give the answer, write the answer here to yourself. Now one thing more student, fill your book. Please fill your book, complete your activities. All things depends on you. आपकी जो इच्छा करें, जैसे करें, आप राइट करें, आंसर लिखें आप. क्वेश्चन इज वेरी इजी हियर. कैन यू लिस्ट अ फ्यू यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ? सो ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड डिशेज, वाटरिंग प्लांट्स, फ्लशिंग टॉयलेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो water is necessity. It is used for different purposes including agriculture. It is also a means of transportation. Water is a necessity. बहुत आवश्यक चीज़ है हमारे लिए वाटर. ये अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, क्योंकि अगर फसलों में पानी नहीं जाएगा, वाटरिंग नहीं करेंगे हम, तो वो डेवलप नहीं होंगी. इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में भी ये यूज़ होता है. सो स्टूडेंट, आफ्टर दैट, after the page number 46, we are go on page number 47. Natural resources, which is here natural resources. प्राकृतिक संसाधन. Now rocks are natural resources too. Gold, silver and diamonds are mined from rocks. रॉक्स आर नेचुरल रिसोर्सेज टू. चट्टाने जो हैं, रॉक्स जो हैं, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है. गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड्स आर माइंड फ्रॉम रॉक्स. वेल, यहाँ भी गोल्ड, सिल्वर और डायमंड्स जो चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव जो चीज़ें हैं, वो भी हमें चट्टानों को तोड़ने के बाद, खनन करने के बाद में मिलती हैं. Mine. Fossils are the hard remains of animals and plants buried under earth thousands of years ago. They often form layers on rocks. What is a fossil? Fossil means, student, petrified remains. Petrified remains या specimen कहते हैं इसे. फॉसिल फ्यूल यानी होता है पुरानी जो चीज़ें होती हैं वो जो ज़मीन में दब जाती हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या इंसान भी हैं.
तो ये जब ज़मीन में दब जाती हैं उसके बाद में हजारों साल बाद में ये लेयर्स ऑफ रॉक्स, ये चट्टानों की लेयर्स बन जाती हैं, ये चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, आपने अगर डायनासोर फिल्म देखी हो तो ये फॉसिल फ्यूल से ही बनाई गई थी, फॉसिल से ही बनाई गई थी, क्योंकि उसके जो अवशेष मिले थे उससे ये चीज़ पता लगाई गई कि पहले के ज़माने में जो एनिमल्स थे वो कितने लंबे थे, कितने हार्ड थे। तो फॉसिल की जो है वो हार्ड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स है, अवशेष है एनिमल्स के, प्लांट के, जीवाश्म की ये अवशेष हैं जो ज़मीन में दब जाते हैं। और इस प्रोसेस को हजारों साल लगते हैं, उसके बाद में ये प्रोसेस जो है वो रॉक के लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स स्टूडेंट, चट्टान को बनने में बहुत टाइम लगता है। देन आफ्टर फॉरेस्ट, forests provide fresh air. They are home to a variety of plants and animals. They provide food, medicine, and wood for furniture and construction. Forests also affect the climate of a place. Forests provide fresh air. फॉरेस्ट हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है, हमें फ्रेश एयर मिलती है फॉरेस्ट से। दे आर होम टू अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये घर है प्लांट्स का, एनिमल्स का। दे प्रोवाइड फूड, मेडिसिन एंड वुड फॉर फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ से लकड़ियाँ मिलती हैं जिनका फर्नीचर बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है, मकानों में लकड़ियाँ लगाई जाती हैं और बहुत सारे यूजेस में आता है वुड। फॉरेस्ट आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। यस, फॉरेस्ट एक फैक्टर है जो क्लाइमेट में चेंज करने में बहुत रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन आफ्टर स्टूडेंट, soil helps plants grow. It provides the plants important nutrients. It is also home to many insects and other organisms. Soil also play an important role in filtering the water on the surface of earth. Soil helps plants grow. स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हम अभी रीड कर रहे हैं ये सारी चीज़ें नेचुरली अकर हैं, नेचुरली बनी हुई हैं। जैसे फर्स्ट में हमने रॉक्स बनाया, तो रॉक हमने नहीं बनाई, ये नेचुरली है। इन रॉक में से जो चीज़ें हमें मिली, डायमंड है, सिल्वर है, गोल्ड है, एक्सपेंसिव है ये चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें हमें माइंड करने के बाद में रॉक से मिली हैं। उसके बाद में सेकंड आता है फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, अगर फ्रेश एयर नहीं है तो हम क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। इसके अलावा हमें मेडिसिन देता है, फॉरेस्ट से मेडिसिन मिलती है, वुड मिलता है जिससे फर्नीचर बनता है, जिससे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है वो हमारे क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है। देन आफ्टर सॉइल, वैसे ही सॉइल हमारी हेल्प करती है। अब आप कहेंगे सॉइल की कोई ज़रूरत ही नहीं है मैम, सॉइल कोई हमारा फूड थोड़ी है। लेकिन बेटा, अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो हम फूड कैसे खाएंगे, हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, हमें विटामिन्स कैसे मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइनस हो जाएंगी। सो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इट इज़ आल्सो होम टू मैनी इंसेक्ट। इसके अलावा सॉइल जो है वहाँ पे जीवन भी है, वहाँ पे बहुत ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो सॉइल में ही रहते हैं। इसके अलावा सॉइल आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फिल्टरिंग द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके अलावा वाटर फिल्टर करने के काम में भी सॉइल आती है, क्योंकि फिल्टर में, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें डेजर्ट में से ओएसिस की बात करें हम, तो ओएसिस कहाँ है, सॉइल के ज़मीन पर ही है, वहाँ पे सॉइल भी है। तो जो वाटर है वहाँ के उस सरफेस में से निकलता है, तो सरफेस में क्या है, सरफेस में पहले सॉइल है, उसके लेयर्स एंड देन आफ्टर द वाटर है, उसके बाद में वाटर जो है वो सरफेस पर आता है, फिर यूज़ किया जाता है। इस तरीके से जो सॉइल है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। देन आफ्टर windmills, windmills use the energy from wind to produce electricity.
ये विंड मिल्स जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं विंड से, ये एनर्जी बनाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। जैसे हमें सन से एनर्जी मिलती है, लेकिन वो सनलाइट है, सन हीट है, लेकिन एनर्जी मिलती है तो हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? हमें सन से थर्मल एनर्जी मिलती है, और थर्मल एनर्जी से क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं ना कि सोलर सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम सेव कर सकें फ्यूचर के लिए। तो वो कब सेव होगी? जब हम सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे। तो सोलर एनर्जी कैसे बनेगी? सोलर एनर्जी बनेगी थर्मल से। एज इट इज़ विंड मिल्स जो है ये एनर्जी डेवलप करती हैं, एनर्जी के बाद में इससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। Then after, fossil fuels such as coal, oil, natural gas and petroleum are a source of energy. It is also a source of energy क्योंकि ये एनर्जी देती हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? ये जीवाश्म हैं जो ज़मीन में एनिमल्स के, प्लांट्स के, ह्यूमन्स बीइंग्स के, ये बहुत सारी हेल्प करते हैं जीवाश्म बनाने में। उसके बाद में ये चीज़ें कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये क्या करती हैं? ये एनर्जी देती हैं। अगर हमारी गाड़ी में डीजल नहीं डलेगा तो आपकी गाड़ी कैसे चलेगी? अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं, बाइसिकल में अगर हम एयर नहीं डलवाएंगे, हवा नहीं भरवाएंगे, तो हम कैसे बाइसिकल कैसे चलाएंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है हमें फॉसिल फ्यूल से मिल रही है। Fossil fuels are used in cooking, driving vehicles and running machines in factories. इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल है, जो ईंधन है, वो यूज़ किया जाता है कुकिंग में, खाना बनाने में यूज़ किया जाता है, ड्राइविंग व्हीकल्स चलाने में काम लिया जाता है, एंड रनिंग मशीन्स इन फैक्ट्रीज। इसके अलावा मशीन रनिंग में भी ये काम आता है। सो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। Which one? Rocks are natural resources. Forest, it is also a natural resources. Then soil, windmills, fossil fuels, क्योंकि ये सारे हमारे लिए गॉड गिफ्ट हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं, और हमें इनका बहुत ध्यान रखना है। Then we are on page number 48. Complete the table with another use for each of the given natural resources. Complete the table. ये टेबल है नेचुरल रिसोर्सेज की, आपको कंप्लीट करनी है, यूजेस लिखने हैं। ओके, वन ऑलरेडी फॉर यू। फर्स्ट पॉइंट इज एयर। ओके स्टूडेंट, we are on page number 48. Here is table. Air help us breathe. So second example of this, second example of air is air helps us blow up a balloon, inflate tires, play the flute and mouth organ. Clear? Air help us blow up a balloon. बलून को फुलाने के लिए एयर काम में लेते हैं। इनफ्लेट टायर्स, टायर्स में एयर आते हैं। प्ले द फ्लूट, अगर हमें फ्लूट पसंद है, बांसुरी बजाना पसंद है, तो उसमें भी एयर काम में आएगी। ओके, देन सेकंड इज सन। वन सेंटेंस ऑलरेडी फॉर यू, हेल्प्स प्लांट्स मेक फूड। ओके, देन गिव्स लाइट, कीप्स अस वार्म, हेल्प्स dry bubbles. Give light, keeps us warm, helps dry puddles. So write one thing, one uses. Then third is plants. One sentence for you, provide food such as fruits and vegetables. Then plants help make clothes and medicines help color clothes. It means indigo, or food means turmeric. Clear? Spices also there. Then animals help in farming activities. Okay, then second
But we will write here can be pet, provide milk, meat and leather. Clear students? Animals can be pets, provide milk, meat and leather. Because animals provide us milk and meat and leather also. Okay. Then second activity. Write two other natural resources and their uses. टू अदर नेचुरल रिसोर्सेज बताने हैं हमें. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में एग्जाम्पल्स हम सॉइल एंड वाटर. तो व्हाट इज द यूजेस ऑफ सॉइल, व्हाट इज द यूजेस ऑफ वाटर. तो सॉइल हेल्प्स ग्रो प्लांट्स एंड वाटर हेल्प अस वॉश क्लॉथ्स एंड ड्रिंकिंग, cultivation, so many things. Clear? So natural resources, so many types of, we studied about the natural resources in page number 46 47. Write it here. For example, I will write here soil. So soil help grow plants, water help us wash clothes. Clear student? Okay. Then after we are on page number 49. Student, on page number 49, most things we use in our daily lives come from natural resources. हम जब से चैप्टर हमने स्टार्ट किया है तब से हम स्टडी करते आ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे जो डेली लाइफ में काम आती हैं, वो हमें प्रकृति ने दी है. अगर हम काउंट करें स्टार्टिंग से तो हम मिल्क से काउंट करते हैं. तो मिल्क, एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क. आफ्टर दैट ब्रेकफास्ट. आप क्या ईट करते हैं ब्रेकफास्ट में? अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो फ्रूट्स प्लांट्स ने दिए हैं. अगर हम और फ्लोर लेते हैं तो फ्लोर कहाँ से आया? फ्लोर क्या है? फ्लोर वीट से आया. वीट कहाँ पे हुआ? वीट सॉइल में हुआ, खेतों में हुआ, कल्टीवेशन पर हुआ. ठीक है, एग्रीकल्चर है ये हमारा, क्रॉप्स ग्रोइंग. सो स्टार्टिंग से जब हम जब उठते हैं उसके बाद से जो स्टार्टिंग होती है, हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? वी यूज़ अ वैरायटी ऑफ अर्थ्स रिसोर्सेज फॉर डिफरेंट पर्पस. अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, हम उन्हें अलग अलग तरीके से, अलग अलग पर्पस से यूज़ करते हैं. ओके. हाउएवर दे विल नॉट बी अवेलेबल टू अस फॉर एवर. हाउएवर, जबकि हम ये जानते हैं कि ये हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकते. फॉर एवर, हमेशा के लिए हम इन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते. सम नेचुरल रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, हजारों करोड़ों साल लगते हैं बनने में. अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था रॉक्स का, कि रॉक्स जो है, जो फॉसिल फ्यूल्स जब बनता है उसके बाद में जो रॉक्स की एक लेयर बनती है, तो रॉक्स को बनने में हजारों साल लग जाते हैं. तो ये कह रहे हैं कि सम नेचुरल रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. इफ वी यूज द रिसोर्सेज फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेस्ड, दे विल गेट हॉस्टेड. इफ वी यूज द रिसोर्सेज फास्टर, अगर हम इन रिसोर्सेज को जल्दी जल्दी यूज करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? तो ये होगा, दे विल गेट ऑस्टेट, एग्जॉस्टेड हो जाएगा, यूज अप कंप्लीटली सून. यानी ये जो चीज़ें हैं वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी अगर हम इन्हें जल्दी फास्ट तरीके से यूज़ करेंगे. तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दे टेक टू बी रिप्लेस, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड क्या है? टू रिसोर्सेज में बांटा गया है. फर्स्ट है रिन्यूएबल, सेकंड है
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो चीज़ें हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, या जो चीज़ें हम डेवलप करते हैं। द वर्ड रिन्यूएबल कम्स फ्रॉम रिन्यू। रिन्यू यानी क्या होता है? किसी चीज़ को नया करना, यानी जो नया किया जा सके उसे रिन्यूएबल बोलते हैं, विच मीन्स टू मेक न्यू अगेन। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज that can regrow or can be replaced within a person's lifespan. It means कोई भी चीज़ ऐसी, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, तो हमने ट्री है, हमने उसे कट कर दिया लकड़ियों के लिए, वुड्स के लिए, अब वो प्लांट्स दोबारा ग्रो होगा, दोबारा वो उसमें से छोटे छोटे से क्या आएंगे, उसमें लीव्स आएंगी, छोटी उसमें प्लांट्स में टहनियाँ निकलेंगी, तो ऐसे वो दोबारा रिन्यूएबल हो जाएगा। So we never run out these renewable resources. They can be living or non-living things. इनमें living things और non-living things दोनों हो सकती है। So student, a lifespan is the length of time for which human beings, plants और animals live. Lifespan क्या होता है? ये एक समय है जिसमें हम एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग सब साथ में एक साथ रहते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं इस चीज़ को कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। Examples of renewable natural resources are air, water, trees, wind, soil, sunlight, and animals. These resources are continuously being renewed. Renewed यानी जिन्हें नया किया जा सके, जिन्हें अच्छा किया जा सके. They move in cycles and often get back to where they started. They move in cycle, ताकि ये अगर हमें लगे कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उसके पहले हम इन्हें सेव करने के लिए इनकी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट है, तो सनलाइट को हम सही कैसे करेंगे, लेकिन हम उसकी जगह पर उसके सनलाइट के साथ साथ में हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए हम सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमेशा बनी रहे या ज़्यादा यूज़ की जा सके. Trees are also renewable resources. If they are cut down, they can grow again from seeds and sprouts. ये अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम अपनी ज़रूरत के लिए लकड़ी को काट देते हैं, वुड को कट कर देते हैं, लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये रिन्यूएबल है, तो क्या करें, इफ़ दे आर कट डाउन दे कैन ग्रो अगेन फ्रॉम सीड्स एंड स्प्राउट्स. वो वापस ग्रो करेगा और उसमें से सीड्स निकलेंगी, स्प्राउट्स निकलेंगे. एनिमल्स आर अनदर एग्जाम्पल. बेबी एनिमल रिप्लेस ओल्डर एनिमल्स दैट डाई. ये चेन है, जो प्रोसेस है किसकी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की. ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच. टुमारो वी विल start our chapter from page number 50. Thank you so much student.